द विकी लालवानी शो पर आज बहुत ही खास मेहमान हैं सोमी अली। मुझे तो बॉयकॉट किया हुआ है ना बॉलीवुड ने। कोई भी आपका फोन नहीं उठाता, कोई भी आपके टेक्स्ट मैसेजेस को जवाब नहीं देता। नहीं, बात करने की उनको इजाजत नहीं है। उनका फिल्मी करियर, उनको विवेक ओबरॉय थोड़ी बनना है। मुझे कहा गया था कि मैं पड़ोस की लड़की को क्यों नहीं मारता। मैं तुम्हें इसलिए मारता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और ये कवर स्टोरी है। ही हेट्स मी बिकॉज ही केयर्स। उस वक्त आपने सलमान का नाम लिया था जब आप मैगजीन से बात कर रहे थे। हाँ। आपके जो रिलेशनशिप्स हुए बॉलीवुड में, were those relationships happening when you were upset with Salman Khan, breaking off with him? Yeah. But then he would also be telling you, I guess, that why did you have such and such a relationship with such and such person? He still doesn't know to this day. He doesn't know who it was. सलमान को संगीता ने अल्टीमेटम दे दिया था। उन्होंने कहा कि या तो इसको चुनो या मुझे चुनो। तो उनका और संगीता का ब्रेकअप हो गया, फिर संगीता की शादी हो गई। मुझे कभी बाप का प्यार नहीं मिला। धर्म जी ने मुझे वो प्यार दिया जो मुझे अपने फादर से नहीं मिला। मैंने उनको बोला कि धर्म जी, मैं बॉबी देओल और जो धर्मेंद्र प्रोडक्शंस है, जो फिल्म लॉन्च हो रही है, मैं उसको जस्टिस सर्व नहीं कर सकती क्योंकि मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं आई हूँ। Have you ever been loved, Somi Ali? No, no, never. I was told. I was told many times, but it was all false and I was used. डिस्ट्रीब्यूटर्स बैकआउट हो गए क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सलमान जो हार्ट थ्रॉब है, वो एक ब्लाइंड पर्सन का रोल कैसे प्ले कर सकता है। There are some reports saying that you and Gulshan Grover were in a relationship for some time. द विकी लालवानी शो पर आज बहुत ही खास मेहमान हैं सोमी अली। सोमी, how are you? How is Miami treating you? I'm very well. How are you? And I want to thank you for having me on your show because I always want to be on your show. And I have to say that I'm so envious of you that you had my favorite actor ever in the world, Mumtaz Ji, after Rekha Ji, on your show, and you were like literally 2 feet away from her. I was so envious of you. Very kind of her to agree to do that. But now I'm really very keen to start the interview with you. Let's go. Let's go. Somi, tell me. Yes. Somi comes to India to meet Salman Khan, or is it that Somi Ali comes to India to become an actress? No, the former. Not at all the latter. I had no interest in acting. I had a crush on an actor, and I went to India to pursue my crush. Millions and millions of girls have crushes on actors, and they don't take that leap. I took that leap, and I did it. Your parents didn't stop you? Well, here's where it gets a little tricky. So I convinced my mom. For a couple of months, at least 6 months, my mother didn't talk to me. And then I convinced my father and I said, Daddy, since you were born in Bombay, and I don't know if you know this, but my grandfather is Hindu, my grandmother is Muslim. So I said, Daddy, we have relatives in Lokhandwala. I want to see Taj Mahal and I want to meet relatives from your side, from my father's side. So I said, Dad, I don't like it here in America. Can I please come there? And can you take me to India for a vacation? So पूरा उनको झूठ बोला, पट्टी पढ़ाई उनको, और उसके बाद डैडी ने कहा अच्छा ठीक है बेटा आ जाओ. And he sent me the ticket and then I ended up going and we ended up in Mumbai. Dad कहाँ थे उस वक्त? Daddy उस वक्त पाकिस्तान में थे, मम्मी फ्लोरिडा में थी. They're geographically separated since I was a kid. So you come to Bombay, but how did you meet Salman Khan? I mean, did you just go and ring the doorbell of his house? बहुत ही अजीबो गरीब, थोड़ी अजीब ही कहानी है ये, कि ये मतलब ऐसे होता नहीं है लोगों की जिंदगी में कभी भी. मगर क्या हुआ, मैंने एक शो देखा, लहरें एक शो हुआ करता था.
तो लहरें जो है उस शो में एक एपिसोड थी, गौतम राजाध्यक्षा, अगर आप हीरोइन बनना चाहती हैं तो आप गौतम से अपना पोर्टफोलियो करवाइए और आपको हम हीरोइन बना देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उनका प्रोमो था। तो मैंने जल्दी से गौतम का नंबर लिख लिया। अच्छा, मैंने प्यार किया देखी हुई थी उस समय, तो मैंने 5-6 बार देख चुकी थी मैं। तो मैंने सोचा अगर सलमान, मुझे सपना आया था कि सलमान इंडिया जाओ, सलमान के साथ शादी करो, ये वो। तो मैंने कहा अगर मैं गौतम के साथ तस्वीरें खिंचवा लूं और मैं अगर मॉडलिंग शुरू कर दूं तो मैं उस फील्ड में मैं अपना कदम रख सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इंडिया चलते हैं, डैडी को बोलते हैं और कहते हैं कि रिश्तेदारों से मिलना है, ताजमहल देखना है। आज तक ताजमहल नहीं देख सकी, रिश्तेदारों से तो मिल ली, मगर ये है कि गौतम से तस्वीरें खिंचवाई। गौतम ने कहा सबसे पहले जाके फार प्रोडक्शंस, जो कैलाश नाथ और आरती की एजेंसी है, वहां जाके अपनी तस्वीरें दो। और गौतम ने डैडी को कहा इसका लुक बहुत जीनत और परवीन जैसा है, जीनत अमान परवीन बाबी जैसा है, और बहुत वेस्टर्न लुक है इसका। इसको जो है मॉडलिंग में पहले शुरू करें। तो डैडी को गौतम ने कहा कि इसका बहुत जीनत अमान परवीन बाबी टाइप वेस्टर्न लुक है, मगर इसको मॉडलिंग करनी चाहिए पहले। और उस गौतम ने कहा कि जाके सोमी फार प्रोडक्शंस पे सबसे पहले अपनी तस्वीरें दो। तो मुझे याद है लिखा हुआ था सोमी अली 816, तस्वीर के पीछे सीरॉक होटल, और जो है मैंने वो तस्वीरें पूरा बंडल जो गौतम ने दिया था वो मैंने दे दिया। तो मुझे दूसरी एजेंसीज में भी जाना था, तो मुझे ये नहीं पता था कि सलमान वहां पे सोफे पे बैठे हुए हैं उस समय। तो उन्होंने मुझे देख लिया, मैंने उनको नहीं देखा। तो उसके बाद मैं जब सिरॉक होटल वापस गई तो शाम के टाइम पे उस समय मुझे फोन आया, आई थिंक तकरीबन 6:30-7 बजे, कि मेरा नाम सलमान खान है और मैं जो हूँ एक होम प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, उसका नाम है बुलंद, और मेरे फादर और मैं और मेरी फैमिली आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ये अगर कोई प्रैंक है तो इट्स नॉट वेरी फनी, आई मीन दिस इज रिडिकुलस। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके साथ कोई झूठ और प्रैंक नहीं कर रहा हूं, मैं सचमुच सलमान बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब एक इंसान को एक सपना आया है, एक लड़की को, वो भी अभी 16 साल की अभी हुई है, ये क्या हो रहा है। तो एनीवे, तो उन्होंने कहा कि मेरा एड्रेस है गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उनका एड्रेस है। तो मैंने जल्दी से डैडी को बोला, डैडी बराबर के कमरे में उस समय आए हुए थे बॉम्बे में, इंडिया में। तो मैंने कहा डैडी सलमान खान जो है एक्टर, उनका फोन आया था, वो फिल्म लॉन्च कर रहे हैं और वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं, वो तस्वीरें उन्होंने कह रहे हैं कि तस्वीरें लेके आओ। तो हम दूसरे दिन मैं और डैडी गए गैलेक्सी अपार्टमेंट्स। तब तक डैडी को मम्मी ने कन्विंस कर लिया था, क्योंकि डैडी से बात करने से पहले मैंने मम्मी को कॉल करके कहा कि प्लीज मम्मी डैडी को कन्विंस कर लीजिए कि मुझे वहां पे जाने दें सलमान के घर। तो मम्मी ने कहा कि ये सच बोल रही है या कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मैंने कहा नहीं, सच में वो सलमान है। तो उसके बाद डैडी ने कहा कि अच्छा चलो। अच्छा, जब हम गैलेक्सी पहुंचे, सलीम अंकल ने भी यही कहा कि इसका जीनत परवीन बाबी जैसा लुक है, इसके हाई चीक बोन्स हैं, और इसको जो है, मगर इसको एक्टिंग क्लासेस जाना पड़ेगा। तो किशोर नमित कपूर जी जो है, उनकी एक्टिंग स्कूल था उस समय, तो वो मैंने शुरू किया। मगर सलमान नहीं थे घर में, अरबाज थे और सलीम अंकल थे, सलमा आंटी थी, और बहुत अच्छी तरह मिले, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सलूक किया मेरे साथ, बहुत अच्छी तरह पेश आए। और उसके बाद उन्होंने मेरी एक्टिंग क्लासेस शुरू कर दी, मुझे बुलंद में हीरोइन की हैसियत से ले लिया उन्होंने। और उसके बाद हम बुलंद की शूटिंग पे नेपाल निकल गए, जब अमित जी खुदा गवाह की शूटिंग कर रहे थे उस टाइम पे श्रीदेवी जी के साथ। तो सलमान की पहली मुलाकात कहाँ हुई आपके साथ? जहाज में, जब हम नेपाल जा रहे थे बुलंद की शूटिंग करने के लिए। तो बुलंद की जो बुलंद फिल्म थी उसमें डैनी डेंगजोंगपा, मोनीश बहल, सोमी, सलमान, कोनिका जी, बहुत सारे लोग थे। तो जहाज में सलमान जो है, मैं अलग बैठी हुई थी अकेले,
और सलमान दूसरी साइड पे बैठे हुए थे। तो वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि सब ठीक है, तुम ठीक हो, ऐसे जस्ट टू चेक ऑन मी। तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मुझे आपको कुछ बताना है। तो मैंने कहा कि देखिए मैं आई हूँ अमेरिका से, क्योंकि मुझे एक सपना आया था कि मुझे आपके साथ जो है यहाँ आना है इंडिया और आपके साथ शादी करनी है। तो सलमान जो है हंसने लगे, क्योंकि वो सोच रही थी क्या बोल रही है, 16 साल की है, क्या बकवास कर रही है। तो मैंने अपनी वॉलेट से उनकी तस्वीर निकाली। मैंने उनकी तस्वीर इसलिए मैं लेके आई थी क्योंकि मतलब दिमाग बचपना का, मैंने सोचा मैं इनको पहचानूंगी कैसे, कहाँ मिलेंगे, मुझे तो तस्वीर लेके जाना चाहिए जो है इंडिया। मुझे क्या पता था उनके हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो मायमी से आई थी। तो सलमान ने कहा ये तस्वीर आप अमेरिका से लेके आई हैं? मैंने कहा जी मैंने मैगजीन से काटी है। तो उन्होंने कहा कि तो आप यहाँ मुझसे शादी करने आई हैं? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा मगर मेरी तो गर्लफ्रेंड है और मेरी तो मंगनी भी हो चुकी है और मेरे तो शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। मैंने कहा मगर मेरा सपना जो है वो अल्लाह की तरफ से आया और अल्लाह अल्लाह ने कहा है कि तुम सलमान से जाके शादी करो इंडिया। तो अल्लाह ने जो सपना मुझे भेजा है वो झूठ कैसे हो सकता है? तो सलमान ने कहा देखो, आई एम वेरी फ्लैटर्ड that you have a crush on me. I have millions of girls that have crushes on me. आप मेरी फैन हो, मैं बहुत खुश हूं इस बात से, मगर मेरी जो है गर्लफ्रेंड है और मेरी मंगनी भी हो चुकी है। तो मैंने कहा आपकी मंगनी हो चुकी है मगर फिर भी हम साथ होंगे, आप देखिएगा। आपको पता नहीं था उस वक्त तक कहीं न्यूज़पेपर से कहीं मैगजीन से कि ही इज डेटिंग संगीता बिजलानी? मुझे पता था मगर मुझे अकल नहीं थी, मैं बिल्कुल बुद्धू थी। ये भी आपको पता था कि वो एंगेज्ड हैं? ये भी पता था, मगर मुझे ये मेरा फेथ इतना स्ट्रांग था उस टाइम पे, मैं बहुत बहुत ज्यादा फेथ पे बहुत बहुत बिलीव करती थी। अब तो ऑब्वियसली कॉलेज और मास्टर्स के बाद इंसान आई एम मोर स्पिरिचुअल नाउ देन बिलीविंग इन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, बट बैक देन आई वाज वेरी रिलीजियस। तो मैं सोच रही थी कि मुझे झूठा सपना कैसे आ सकता है, ये कैसे हो सकता है, और ये क्या कह रहे हैं कि इनकी इनकी मंगनी हो चुकी है और इनके ये हो ही नहीं सकता ऐसे। मैंने कहा आप जो बोल रहे हैं आप बोलते रहिए, मगर जो मैं कह रही हूँ वही होगा, आप देखिएगा। चलिए, आप उनकी लाइफ में तो आ गई, जी। अ, और संगीता had to go because she caught you and Salman together. मैं विंध्याचल में रहती थी, तो सलमान और मैं नाश्ता कर रहे थे सुबह में, तो वो विंध्याचल आई थी, जहाँ माउंट मैरी पे है विंध्याचल, पता नहीं अभी है कि नहीं है, मगर उन्होंने हम दोनों को बैठे हुए, हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि या तो इसको चुनो या मुझे चुनो। सलमान को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था, जो उनका हक है उनको देना चाहिए था। और उसके बाद जो है सलमान ने डिसीजन लिया जो उनको लेना था, तो उनका और संगीता का ब्रेकअप हो गया, फिर संगीता की शादी हो गई। आपको जरा भी गिल्ट नहीं हुआ उस वक्त? आप आज कह रही हैं काफी जगहों पर कि मैंने गलत किया, सलमान हाँ बैक टू मी, सलमान डिडंट स्टे विद मी फॉर टू हाँ। लॉन्ग, बट उस वक्त आपको बिल्कुल गिल्ट नहीं हुआ? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि कितनी करोड़ों लड़कियां होंगी जो सलमान खान पे मरती हैं, और उस समय उस दौरान उस टाइम पर, और कितनी लड़कियां हैं जो सलमान खान के लिए अमेरिका से इंडिया जाती हैं उनके साथ, उनको डेट करने, उनकी गर्लफ्रेंड बनने, उनके घर में रहने, और वो सपना कितनी लड़कियों का पूरा होता है आप मुझे बताइए। मैंने तो आज तक नहीं सुना एक लड़की का भी सपना ऐसा पूरा होते हुए, सिवाय मेरे, मैंने तो आज तक नहीं सुना। So you must be feeling that you're winning the race against Sangeeta Bijlani and No, Black no. Sabbath I as well. was feeling that God is by my side and my dream was a reality because I was too naive and my brain had not developed. I was a ninth grade dropout. I didn't have enough education to understand what I was doing. I was literally breaking a relationship, breaking a marriage. I was literally doing that. मगर ताली दो हाथ से बजती है। हम हमेशा औरतों को क्यों हम इल्जाम दें, आदमियों को क्यों नहीं इल्जाम देते हम लोग?
ये किस तरह की मतलब इंसाफ है, किस तरह की सोसाइटी है ये कि आप औरतों को इल्जाम दे रहे हैं? आदमियों का भी तो हाथ होता है इसमें। मैं ये नहीं कह रही कि औरत जो है वो हमेशा सही होती है, मैं ये नहीं कह रही, मगर ये मैं जरूर कहूंगी कि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, उम्र में 16 साल की थी, मुझे अकल नहीं थी। मगर सलमान तो 27 साल के थे ना, उनको तो अकल थी। आप ये कह रही हैं कि अगर सलमान संगीता को नहीं छोड़ते तो जी आप क्या करते? इवेंचुअली तो यू वुड हैव हैड टू गिव अप, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, कि उन्होंने गलती इक्वली की जितनी आपने, कि इवेंचुअली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। हाँ, वरना फिर मैं वापस चली जाती ना, उसी समय में वापस चली जाती। 1990 में मैं वहां गई थी, 91 में मैं 16 की हुई, और 16 में जब मैं सलमान से मिली तो उसी समय में वापस चली जाती। आपने साइन तो बुलंद की, लेकिन आपकी पहली पिक्चर थी कृष्णा अवतार। जी, मिठुन दा माय फेवरेट, मिठुन दा के साथ। ये कैसे हुआ? बुलंद रिलीज क्यों नहीं हुई? बुलंद 90% हमने शूट कर ली थी। क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स बैकआउट हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सलमान जो हार्ट थ्रॉब है वो एक ब्लाइंड पर्सन का रोल कैसे प्ले कर सकता है, हम ये पिक्चर नहीं खरीदेंगे, ना हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हार्ट थ्रॉब सलमान बागी उस टाइम पे नगमा के साथ, रवीना के साथ, फूल और क्या, फूल और पत्थर, पत्थर के फूल, ये सब। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो बहुत गुस्सा हो गए। It didn't release, the relationship didn't work out, whatever happened to the film, the same thing happened to the relationship. Sumi, I recall last time when I spoke to you, Yes. you said that you're open to love, and you seem to suggest that there's someone in your life. That was a long time ago. मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जो थे, जो जो लॉयर हैं, अभी भी लॉयर हैं, वकील हैं, उनके साथ मेरा ब्रेकअप हुआ था 2021 में। तो उस टाइम पे हम लोग 7 साल से साथ थे। उसके बाद तो मैं अकेली हूँ। 2021 से तो मेरी लाइफ में कोई नहीं है। उस रिलेशनशिप में क्या हुआ? उन्होंने मेरे ऊपर चीट किया था। आपने उनको रंगे हाथों पकड़ा? नहीं, टेक्स्ट मैसेज देख लिया। तो मैं वापस वो हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत स्ट्रांग, बहुत करेजियस। देखिए, जब इंसान बच्चा हो या टीनेजर हो, उसको ऐसी चीजें एक्सपोज की जाएं जो उस बच्चे को और टीनेजर को नहीं की जानी चाहिए, तो वो बच्चा और टीनेजर वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। तो साइकोलॉजिकली उसका दिमाग ऐसी चीजें समझना लगता है जो जो एक आम बच्चे को 5 साल के या 16 साल के नहीं समझ आती हैं। तो जब मुझे पता चला कि ये मेरे ऊपर चीट कर रहे हैं, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड, तो मैंने तुरंत उनके साथ खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे अकेले रहने में कोई कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। मैं आराम से अकेले रह सकती हूँ। मेरी ऑक्सीजन है मेरी एनजीओ, बस। आई एम सून कमिंग टू द एनजीओ, बट आप कह रही हैं कि you didn't want history to repeat itself, which means Right. you're clearly saying it, and you said it before, you're saying it again, that Yes. Salman drifted towards his next girlfriend, that is Aishwarya Rai, when you were with him. See, I don't want to bash any women at all. I have immense respect for Aishwarya. I think she is absolutely stunning. She's a good person. She speaks well. She's highly intellectual. Whatever happened between them, I have zero knowledge of that. And his future girlfriends, be it Katrina or be it whoever it may be, or whoever he's dating now. I don't keep up with मुझे tabloid journalism ये सब मैं नहीं पढ़ती हूँ। Julia Vantour. हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एक इंसान अगर चीट करेगा एक बार, तो आप वापस चीट करेगा, फिर वापस चीट करेगा, और वो ये एक पैटर्न बन जाता है इंसान के लाइफ में। और सिर्फ औरतें, आदमी नहीं, औरतें भी ऐसे ही हैं। ये सिर्फ आदमी नहीं है, औरतें भी यही करती हैं। तो मैं दोनों जेंडर्स को ब्लेम करती हूँ। एक ही जेंडर ऐसा नहीं है, औरतें भी करती हैं। आपने जो एनजीओ खोला, नो मोर जी टीयर, जी। वो फोकस करता है अब्यूज अगेंस्ट वुमेन। फोकस करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो बच्चे ह्यूमन ट्रैफिक किए जाते हैं
or LGBTQ plus AI victims, or men and women victims of human trafficking and domestic violence. तो बहुत ब्रॉड है हमारा जो मिशन है, और अब हम ग्लोबल हो गए. Did this NGO start from some kind of a personal experience you had in your life, where somebody was violent with you or somebody was aggressive towards you? You felt humiliated as days rolled by, and one subject, you added another subject, then you added one more subject, and then opened the NGO, broad based. बचपन से मैं मम्मी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ. मैं 4 साल की उम्र से देख रही हूँ अपने घर में मम्मी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ. मम्मी की जो दोस्तें आती थीं, जो सोशलाइट्स, और हम लोग एफ्लुएंट घर में पले बड़े कराची में, पाकिस्तान में. जब मैं 9 साल की थी मैं अमेरिका आ गई मम्मी और मेरे छोटे भाई के साथ. मगर हम लोग, जो मम्मी की फ्रेंड्स आती थी, सोशलाइट फ्रेंड्स, वो भी फिल्ड विद ब्रूजेस. तो मैं मम्मी से पूछती थी, मम्मी इनको क्या हुआ? मम्मी के पास एक ही जवाब होता था, बेटी वो सीढ़ी से गिर गए. मैं सोचूं, अरे सीढ़ी से गिर गया, ये क्या बात हो गई? मतलब एक 5 साल की बच्ची को आप बोल रहे हो कि हर आंटी सीढ़ी से गिर गई, तो बच्ची सोच रही कि हर एक सीढ़ी से गिर रहा है, ये क्या बात हो गई? सो फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स हैज बिकम अ यूफेमिज्म फॉर being a victim of domestic violence. It is not only used in Karachi, Pakistan, or Mumbai, India, it's also used in America. I fell down the stairs. Oh, I was opening the cabinet and I hit my face. That's why I have a black eye. ये सारी बकवास बातें. और of course इंसान जिस environment में पला बड़ा है, वो environment इंसान के psychologically impact करेगी, definitely करेगी. और फिर आगे जाके आप सोचते हो, अगर आप टीनेजर हो, आपके साथ वायलेंस हो रहा है, आप सोचते हो ये नॉर्मल है, ये तो मम्मी के साथ भी हुआ था, ये तो नॉर्मल है. तो अगर आपको ये समझ नहीं है कि ये एक सपने के ऊपर आप इंडिया जा रहे हो, इससे ज्यादा बेवकूफी वाली बात तो मैं सोच भी नहीं सकती इस उम्र में. और तो अगर आपके साथ वायलेंस हो रहा है, तो आप ये सोच रहे हो कि ये तो नॉर्मल है, मम्मी के साथ भी यही हुआ था. आपके साथ हुआ? 100% हुआ, सबको पता है हुआ है. आप अगर अभी गूगल करें, आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है. सिर्फ आप गूगल कर लीजिए, पुराने मैगजीन, सिनेब्लिट्स, मूवी, फिल्म फेयर, याद है सारे. गूगल करिए सोमी अली और उस इंसान का नाम, और आप देखिए आपको क्या मिलेगा. मैंने किया है. आप उस इंसान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, जरूर उस इंसान का नाम लेना वर्थ ही नहीं है. Are you referring to violence against you in your relationship with Salman Khan? मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मगर अक्लमंद को इशारा काफी है. जब मम्मी के साथ हो रहा था, जी, मतलब your daddy was getting aggressive, जी, तब जी. आपने कुछ डैड को कहा, कुछ चिल्लाया? उसके बाद आपके रिलेशंस डैड के साथ कैसे रहे? मतलब आप कहते हैं कि वो भी आए थे when you came to India. डैडी ने हम सबको बिठा के डैडी ने हमसे माफी मांगी थी, और मैंने ये चूज किया कि मैं अपने फादर को फॉरगिव करूं. मगर क्योंकि मैं बहुत रिलीजियस थी और मैं अपने सपने में बहुत फेथ रखती थी, तो मैं समझती थी कि मेरे साथ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंसान मुझसे प्यार करता है. तो क्योंकि मुझे कहा गया था कि मैं पड़ोस की लड़की को क्यों नहीं मारता, मैं तुम्हें इसलिए मारता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं. और ये कवर स्टोरी है. He hates me because he cares. That is what you had said to the magazine. कवर स्टोरी है, जूही चावला कवर पे है और लिखा है he hates me because he cares. उस वक्त आपने सलमान का नाम लिया था जब आप मैगजीन से बात कर रहे थे? आई थिंक लिया था, हाँ. डैडी ने बहुत गुस्सा किया था मेरे ऊपर, बहुत गुस्सा थे. जब डैडी को पता चला, तो जब मैं विंध्याचल में रहती थी 2 बेडरूम के, तो डैडी काफी वक्त मेरे साथ रहते थे अपार्टमेंट में, फ्लैट में. तो जब डैडी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि 23 साल की उम्र में तुम्हारी शादी मैं करवा रहा हूं, और तुम इस इंसान से शादी नहीं करोगी, सोचना भी नहीं. और अभी के अभी मुझे बताओ कि इस इंसान ने कभी तुम्हें मारा है? मैंने कहा नहीं डैडी, कभी नहीं मारा है, क्योंकि मैं डर गई कि पता नहीं क्या हो जाएगा.
तो मैंने कहा नहीं डैडी, कभी नहीं मारा है, कभी नहीं मारा है। तो 23 साल की उम्र से डैडी कह रहे हैं मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, शादी करवा रहा हूँ। और अब आज तक, अब तो खैर बोलना छोड़ दिया उन्होंने, अब तो आई एम अ ग्रोन अप अडल्ट वुमन। You worked with a lot of top heroes. You worked with Govinda, Unbelievable. you worked with Sunil Shetty. Om Puri ji, are you kidding me? Om Puri ji, oh my God. Jeetu ji in an art film with Om Puri ji and Jeetu ji. Avinash Vadwan, I love him. He's a sweetheart. Amazing actor, the most underrated actor ever. Mitunda is my favorite. Of course, I've done the most amount of movies with Mitunda. Chi Chi. I mean, Chi Chi and I shared the same secretary. And then also I had Sanju. संजू और मेरे जो पहले मेरे जो सेक्रेटरी थे वो पंकज खरबंदा थे, जो संजू के सेक्रेटरी थे। तो संजू के साथ मैंने पहली टाइम कैमरा फेस किया संजू के साथ, तो मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मैंने उनको बचपन में देखा था। That first shot. फर्स्ट शॉट मैंने जिंदगी में गोवा की शूटिंग में संजू के साथ गाना किया था और मैं कांप रही थी डर के मारे, क्योंकि मैंने उनको देखा था रॉकी में जब मैं बच्ची थी, आंदोलन संजू के साथ, और गाना था दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे। तो संजू ने मुझे बिठाया अपने बराबर में, समझाया कि नर्वस मत हो और मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं बहुत पेशेंट हूं और बिल्कुल चिंता मत कर। ही वॉज द स्वीटेस्ट नाइसेस्ट गाय एंड ही ऑल्सो टॉट मी to treat the spot boy and the film crew and the director the same way you treat everyone else. Hierarchy तो संजू के नाम वो तो मानते ही नहीं है hierarchy. आज इंडस्ट्री में से कौन आपके साथ टच में है बॉलीवुड में से? कोई भी नहीं, मुझे तो बॉयकॉट किया हुआ है ना बॉलीवुड ने। कोई भी आपका फोन नहीं उठाता, कोई भी आके आपके टेक्स्ट मैसेजेस को जवाब नहीं देता? नहीं, आप बिल्कुल अभी भी कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुझे बॉलीवुड से क्या लेना देना है। नहीं, एक होता है ना कि काम किया है, चलो आई रीच आउट, आई चैट। किया मैंने कोशिश, मगर वो बात करने की उनको इजाजत नहीं है। उनका फिल्मी करियर, उनको विवेक ओबरॉय थोड़ी बनना है मुझसे बात करके। उनको मना किया गया है। आप देखें सिमी, उनका लास्ट नेम मुझे नहीं पता, सिमी का जो जर्नलिस्ट हैं, और उजावल करके कोई है, त्रिवेदी उजावल हाँ, इन दोनों ने कहा सोमी अली को कैंसर है, सोमी अली ड्रग्स और अल्कोहल पे है, सोमी अली ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, सोमी अली जो है वो मेंटल केस है। अच्छा, बाद में मुझे पता चला, मैंने एक अपनी दोस्त से बात की तो उसने कहा कि सोमी तुम्हारे बारे में क्या क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं, यू हैव नो आइडिया। तो मैंने एक काम किया, मैं जिन लोगों को जो मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, जो एक्टर फ्रेंड्स हैं मेरे, मैंने कहा भगवान के लिए मेरी कोई पोस्ट लाइक मत करो, कोई मेरी पोस्ट पे कमेंट मत करो, क्योंकि आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो आप मत करो ऐसा काम, क्योंकि ये जो इंसान है जिन्होंने ये सब अफवाहें फैलाई हैं और सोमी से बात मत करो, ये ऐसे इंसान हैं कि इनमें बहुत गुस्सा और बदला लेने की वो है आदत। तो ये अलग हालांकि मतलब इस उम्र में इंसान, मैं एजिस्ट नहीं हूं, मैं एजिज्म पे नहीं कह रही हूं, मगर इस उम्र में इंसान इतना मेच्योर हो जाना चाहिए कि आप ये बदला और ये सब इधर की उधर गॉसिप, इन सब में कौन एंगेज करता है इस उम्र में। और आप पूरी इंडस्ट्री को आपने बोल दिया है कि सोमी अली से बात मत करो। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो उल्टा अपने दोस्तों जो मुझसे बात करते हैं उनको कहा है कि मत करो भाई, भगवान के लिए तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं तो मायने में बैठी हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तुम लोग तो मुंबई में हो, तुम लोगों को फर्क पड़ेगा, मुझसे बात मत करो तुम लोग। मैंने खुद ही बोला है। आप कह रही हैं कि विवेक ओबरॉय का करियर नहीं चल पाया? Yeah, he was an excellent actor. He made an excellent debut. He's an excellent human being. मेरा राखी भाई है वो, मुंह बोला राखी भाई है मेरा वो। Somi, my question is that even he has stopped talking to you, if I'm not wrong. Yes, Why? absolutely. Because I speak the truth. People don't like people who speak the truth. People run away from people who speak the truth. But you have been siding Vivek Oberoi. He is your Rakhi brother and he stops talking to you. अरे उसके साथ क्या क्या हुआ है आप जानते हैं? वो मुझसे वापस क्यों, देखें,
डिस्कवरी प्लस का शो हमारा था फाइट और फ्लाइट, ठीक है, नो मोर टीयर्स के ऊपर। उस शो से पहले विवेक, सुनील, सब लोग बात करते थे मुझसे। शक्ति कपूर, चंकी पांडे, गुलशन ग्रोवर, सारे लोग बात करते थे। मनिया, मनीषा कोइराला, ये लोग सब बात करते थे, मेरे दोस्त। जैसे ही वो शो शुरू हुआ मेरा, तो उस शो में उन्होंने मुझसे पूछा, 10 विक्टिम्स का शो था, तो नो मोर टीयर्स के विक्टिम्स, उसमें से एक विक्टिम मैं भी थी, सर्वाइवर। उन्होंने मुझसे सवाल किया सेकेंड एपिसोड में कि आप कभी अब्यूज हुई हैं? तो मैंने कहा जी हाँ, जब मैं इंडिया में थी, एक्टर थी, उस समय जिस एक्टर के साथ मैं थी, तो मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज किया गया था। उस समय आपने उस एक्टर का नाम लिया? नहीं, हमें नाम लेने की इजाजत नहीं थी। डिस्कवरी प्लस ने कहा नो नेम। ये शो प्रोड्यूस कौन कर रहा था? डिस्कवरी प्लस, अमेरिका, हॉलीवुड। तो हॉलीवुड ने हमें कांटेक्ट किया, तो मैं हॉलीवुड में मैंने अपना पैर डाल दिया। मैं बहुत खुश हो गई कि हमारा रियलिटी शो नो मोर टीयर्स के ऊपर विक्टिम्स को आवाज मिल रही है। तो वो शो सीज एंड डिसिस्ट करवा दिया गया, एक वकील को हायर किया गया और वो शो बैंड हो गया। उस शो के बैंड होने के बाद ये इंसान वहां तक नहीं रुके, उन्होंने फिर अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। सिमी और वो उजावल उनको बोल दिया कि ये बोलो सोमी के बारे में जाके सबको। और ये मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया, जो मेरी बहुत नजदीकी दोस्त थी, जब हम छोटे थे, बचपन में, टीनेजर्स थे। तो उसने मुझे बताया कि सोमी, तुम्हारे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तुमसे तो कोई बात नहीं करेगा। उसको कैसे मालूम पड़ा, आपके दोस्त को? क्योंकि वो बॉलीवुड में है और वो she's on an insider, she's a very famous actress. But you just said that nobody talks to you. But this happened in 2021. She called me in 2021. Even she stopped contacting you after that? बिल्कुल बिल्कुल, बात ही करना छोड़ दी उन्होंने। और मैंने अपनी 21वीं सालगिरह, या आई थिंक 18 या 21वीं, आई डोंट रिमेम्बर, एक बर्थडे वीडियो लहरे वालों ने ही उन लोगों ने वीडियो बनाया था। मैंने वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उसमें मैंने रवीना को टैग किया, रवीना ने मुझे अनटैग कर दिया। तो मैंने सोचा, अरे यार, हम लोग रोज साथ बैठ के बिरयानी खाते थे सिरॉक होटल में, और मैं तुम्हारे घर आती थी, और मतलब ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी ने आपको फोन करके या टेक्स्ट मैसेज में एक्सप्लिसिटली कहा कि प्लीज डोंट कनेक्ट विथ मी फॉर सच एंड सच रीजन? नहीं नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा। मगर अगर आप किसी को व्हाट्सएप करोगे और वो इंसान आपको जवाब नहीं देगा, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। मुझे एक हैप्पी बर्थडे का विश आया, अभी मार्च 25 को मेरी बर्थडे थी, जीनत के ने मुझे व्हाट्सएप किया। जीनत और मैं, हम लोग इन टच रहते हैं फ्रीक्वेंटली। जीनत मेरे सामने रहती थी विंध्याचल माउंट मेरी पे, जब मजहर भाई के साथ थी वो, अब तो जुहू शिफ्ट हो गई हैं। मगर जीनत जो है, उन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे कहा था अभी 2 दिन पहले। उनके अलावा और कोई नहीं है जो मुझसे बात करता है। Zenith has also gone through a very tough time in her life, in her personal relationships. Absolutely. And she was very honest in Rendezvous with Simi Garewal. If you watch her interview, it's phenomenal. She's speaking from her heart. Absolutely. मगर ये है कि बाकी सब बात करना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि आप देखिए, अगर आपका कोई करियर बर्बाद कर सकता है, आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपका लाइवलीहुड छीन सकता है, तो आप सोमी अली से बात करेंगे या आप उस इंसान से बात करेंगे और डरेंगे उस इंसान से, वो जो कहेगा वो करेंगे? आई मीन, लॉजिक यूज करिए, अप्लाई करिए। ऑब्वियसली सोमी अली आपको फिल्में दिला सकती है, या वो इंसान आपको फिल्में दिला सकता है? सोमी अली तो एनजीओ चला रही है, मायामी फ्लोरिडा में बैठी हुई आराम से। वो लोग तो बॉम्बे में बैठे हैं ना, मुंबई में बैठे हैं। उनको तो काम चाहिए, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो। अब तो एक्टर्स, जो फीमेल एक्टर्स हैं, उनके लिए कितने दरवाजे खुल गए हैं ओटीटी सीरीज की वजह से। अब वो समय नहीं रहा 35 में एक्ट्रेस जो है शादी कर ले और बच्चे पैदा कर ले, अब वो टाइम नहीं है। You speak about Simi Garewal. I used to love her show, and I think the 2 best interviews that she did was one with Rekha and the other with Aishwarya Rai. Yes, and Rekha is my
I always say that she's number one. Then there's Mumtaz, and Zeenat, of course, is someone that I know quite closely. One, because she was my neighbor, and also because she was a frequent visitor at Salman's house. और हम लोग एक अर्पिता के फंक्शन में भी गए थे जब अर्पिता छोटी थी, तो जीनत को उन्होंने बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट, तो मैं, सलमान, अर्पिता और जीनत हम लोग सब साथ में गए थे. मगर ये है कि it's just very, very, it's, it hurts. You saw both those interviews, Rekha and Aishwarya Rai? Yeah. No, not Aishwarya Rai. I watched Zeenat and Rekha. Because Zeenat's interview was phenomenal. Because she spoke from the heart. And one question killed me for her. She was asked by Simi, have you ever been loved? And she said no. And that it shattered me into pieces. आप फिर से देखिए वो interview. Simi ने उनसे पूछा है, did you ever receive love, true love in your life? And Zeenat said no. I hope I don't get a copyright letter from Simi, but I ask you the same question. Have you ever been loved, Somi Ali? No. No. Never. I was told. I was told many times, but it was all false and I was used. You spoke about Gulshan Grover twice. You took that name. And if you he's a good friend of mine. Used to be a good friend of mine. Now he doesn't talk to me. And if you go through the internet, there are some reports saying that you and Gulshan Grover were in a relationship for some time. No, never. Gulshan is a wonderful person and he's a very respectful guy. He's a very, very respectful guy. But relationship में होना कोई disrespectful तो नहीं है. नहीं, मगर मैं उनके साथ रिलेशनशिप में कभी थी नहीं. अगर आप किसी और का नाम लें जिनके साथ मैं थी तो मैं बोलूंगी हाँ थी, मगर गुलशन के साथ मैं नहीं थी. आप ही बता दीजिए. नहीं, वो उसके लिए तो फिर आप रुकिए, फिर अभी नहीं बताऊंगी, बाद में अगले इंटरव्यू में. Were they from Bollywood? जी हाँ. More than one? Yes. But were they before you broke up with Salman or after? नहीं, मुझे सलमान, जब मैं सलमान के साथ थी, सलमान ने कहा, उन्होंने मुझे ये कहा कि लड़कियां जो हैं अफेयर नहीं चला सकती हैं, सिर्फ आदमी अफेयर चला सकते हैं, तो तुम अफेयर नहीं कर सकती हो. मुझे फुल इजाजत है अफेयर करने की और दूसरी औरतों के साथ. अब मैं आई थी मायामी से, तो मेरा पारा जो है बहुत ऊंचा चढ़ गया जब मैंने ये डायलॉग सुना. तो मैंने कहा कि ये आदमी जो है ये मेरे ऊपर चीट कर रहे हैं, ये मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और इनफिडेलिटी हो रही है हर रोज अलग अलग लोगों के साथ. तो ये मुझे ये कह रहे हैं कि तुम नहीं ये कर सकती हो, मगर मैं क्योंकि आदमी हूं तो मैं कर सकता हूं. तो मैंने सोचा ये क्या बकवास है. अब आप सोचें कि ये लड़की जो है इस समय 17-18 साल की हो चुकी है और वो देख चुकी है और सह चुकी है, बहुत कुछ सह चुकी है. तो उसके दिमाग में क्या है कि नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सारे मीडिया को बोलूंगी जो मेरे साथ हुआ है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी. तो आपके जो रिलेशनशिप्स हुए जी बॉलीवुड में, वो सलमान के रिलेशनशिप टूटने के बाद हुए या फिर सलमान से जब एंड में बहुत? सलमान के साथ मेरे 50 बार ब्रेकअप हुए. मैं होटल में चली जाती थी, ब्रेकअप होता था, फिर मैं वापस उनके घर में चली जाती थी. मेरे अमेरिका आने से 3 साल पहले मैं उनके घर में ठहरी थी, उनके घर में रहती थी. Yes, but I again ask, were those relationships happening when you were upset with him, breaking off with him? Yeah, when I was breaking up with him, yeah. And then you were coming back. When we had a fight and I had broken up with him during that time. But then he would also be telling you, I guess, that why did you have such and such a relationship with such and such person? Never knew. He still doesn't know to this day. He has no idea. He doesn't know who it was.
the person, he has no idea who it was, who the person is. So at times you were in that retaliation spree, revenge spree. Absolutely. How dare he tell me that a man can do something and a woman cannot do the same thing because of her gender? What rubbish is that? That's garbage. अगर आप मुझे ये बात बोल रहे हैं मैं 18-19 साल की हूं तो naturally मैं upset होंगी और गुस्सा होंगी. Somi, I drift a little here and take you to talk about someone whom we lost a few months ago, Dharamji. If I'm not wrong, you were close to him. You went to his bungalow. You were there for 3 hours. Apparently, he told you that he'll cast you in a movie. He respected you and loved you as a daughter. Please tell us your interaction with Dharamji. I think धर्मजी मेरे क्योंकि मेरे फादर कभी हमारे साथ नहीं होते थे. वो फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कैमरामैन थे और हमारे घर में ही स्टूडियो हुआ करता था. तो मुझे कभी बाप का प्यार नहीं मिला. तो धर्मजी ने मुझे वो प्यार दिया जो मुझे अपने फादर से नहीं मिला. उन्होंने मुझे अपनी बेटी अपनाया. मैं उनके पैर छूती थी और मैं उनके बंगले में उनके साथ बैठ के 4-4 घंटे तक हमने गप्पे मारी हैं. और मैंने उनको बोला कि धर्मजी, मैं बॉबी देओल और जो धर्मेंद्र प्रोडक्शंस है, जो फिल्म लॉन्च हो रही है, मैं उसको जस्टिस सर्व नहीं कर सकती क्योंकि मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं आई हूँ और मुझे ना एक्टिंग का शौक है ना मुझे डांस करना आता है ये सब. तो मैं नहीं चाहती बॉबी का करियर और आपकी प्रोडक्शन कंपनी को कोई इम्पैक्ट हो नेगेटिव. आप कोई अच्छी सी लड़की देख के. और मैंने बॉबी को भी बोला जाते समय, धर्मजी के घर से जब मैं निकल रही थी तो बॉबी खड़ा हुआ था. तो बॉबी ने कहा शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे उस समय. तो बॉबी ने कहा शेखर कपूर has said you have great screen presence. I said, but Bobby, I cannot act, I cannot dance. You have to find a girl that is interested in acting, interested in learning. Bobby said, but you can learn. I said, no, I will not do justice to you and your launch. You should do the film with someone else. Had you started acting at that time? कर रही थी मैं फिल्में, डेफिनेटली. सरोजी की क्लासेस में भी जाती थी, डांस क्लासेस में. मगर मैं धर्मजी के साथ ऐसे और बॉबी के साथ उसकी पहली पिक्चर में मैं चली जाऊं. मैंने सोचा मैं उनको क्यों इनका सत्यानाश करूं. ये इंसान ने मुझे अपनी बेटी बनाया है, मैं इनके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ. You felt morally responsible that, I felt ethically and morally responsible. Until you are a complete actress. Of course, I felt morally responsible, and look what happened. Barsat was then directed, if I'm not directed by Rajkumar Santoshi, if I'm not mistaken, and they both won a debut Filmfare Award, Twinkle and Bobby. So a good thing came out of me saying no. I was right. Was Shekhar Kapoor directing Barsat before Santoshi stepped in? उस फिल्म का नाम पहले जान था. फिर बरसात रखा गया और शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे वो फिल्म. Somi, take me to the show which you are doing now, the chat show. And I guess when you started this show, I think you have called it the uncomfortable conversation. Absolutely. You had in mind that you will reach out to some Bollywood people also. You will make that one effort. Not at all. Not at all. I'll give you what I had in mind. I'm sick and tired of people that are abused, children that are sexually abused, women that are raped, men that are trafficked. I'm tired of these. आपने Monsoon Wedding देखी है? Monsoon Wedding एक हिंदी पिक्चर है जिसमें बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज एड्रेस की गई है. एक ही फिल्म मैंने देखी है जिसमें नसीर है और जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी. मगर जो मेन कैरेक्टर जो अब्यूज होती हैं वो अभी भी बहुत अच्छा काम करती हैं. तो पहली फिल्म थी ऐसी. तो मैंने द अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन शुरू की है एक ले पर्सन से लेके, एक बड़े सुपरस्टार से लेके, एक कॉमेडियन से लेके, ट्रांसजेंडर से लेके, सबके लिए.
बॉलीवुड वालों का तो मैंने सोचा ही नहीं। बॉलीवुड वाले तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, तो मैं उनके लिए क्यों ये शो तो अभी शुरू किया है। और पहला गेस्ट कौन था? अली काजमी। अली काजमी पाकिस्तानी और कनेडियन हॉलीवुड एक्टर है, बहुत टैलेंटेड आदमी। उन्होंने एंजेलिना जोली की प्रोडक्शन में काम किया है, दीपा मेहता के साथ फिल्म की है उन्होंने, अभी उनकी फिल्म आने वाली है, और बचपन से वो एक्टिंग कर रहे हैं। What is the response that you are getting to the show? Excellent, people love it because in the history of talk shows कभी ऐसा नहीं हुआ है कि होस्ट जो है उससे भी गेस्ट सवाल पूछ रहा है। तो Yeah. मैं अली से अगर पूछ रही हूँ कि अली व्हाट्स द वर्स्ट थिंग यू एवर डन, तो अली कह रहा है, जवाब देता है, ठीक है, फिर कहता है वेट अ मिनट, शो मी व्हाट्स द वर्स्ट थिंग you've ever done. Then I had to answer honestly. So I have created something where I don't want to put the guest on the hot seat. I want to be on the hot seat with the guest. तो मैंने जवाब दिया। I conclude this conversation by asking you the same, what Ali asked you. Hope he doesn't mind it and send No. me a copyright letter. No, Ali is an amazing person. What is the worst thing that Somi Ali has done? The worst thing that I have done is that and I won't take the full blame, but I have apologized for this to the lady, is that I broke up a marriage by going to India at 16. Unknowingly, inadvertently, I was a child. I didn't know what I was doing, but I made amends. I apologized to the lady on the phone and I said, I'm very sorry. I was a kid. I didn't know what I was doing. And she graciously accepted my apology. You're talking about? Obviously, Sangeeta Bijlani, obviously. And I apologized to her, and I'm very proud of the fact that I apologized to her because it happened so many years ago. But I did make amends and I apologized to her. And she said, I appreciate your apology. It happened like 100 years ago. I don't even know why you're apologizing. And I was like, no, it doesn't matter. Even if I was a kid, I still owe you an apology. And I would say that to anyone that I've done wrong, that I'm sorry. I didn't know any better. That's so morally correct, so ethical. Thank Somi, you. I appreciate you joining me for this conversation. As usual, you have spoken your heart out. Of course. There's no other way. My questions are always raw, but so are your answers. Thank you. It was a pleasure. You know, I love being on your show. Always. Thank you, Somi. Thank you so much.